Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम साइलैब में एक प्रोग्राम बनाएंगे टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग पावर मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर मेथड क्या है। सो व्यूअर्स, पावर मेथड एक न्यूमेरिकल मेथड है जो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर देता है। नाउ देयर आर टू कंडीशंस. First condition is that this method can be applied to a square matrix which has all distinct eigenvalues. अब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उस मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो सभी अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है दिस मेथड गिव्स डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, रिपीट नहीं कर रही हैं, तो जो भी उनमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो हमें पावर मेथड से मिलती है और कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो चलिए एक बार समझते हैं कि पावर मेथड वर्क कैसे करता है। लेट A be a square matrix and x0 be a initial non-zero vector. So how do we apply power method? We say for the first iteration we write x1 is equal to a multiplied to this initial vector x0, and this will yield a column vector, we call it y1, और इस y1 वेक्टर से हम जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा से लैम्डा 1 उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो भी रिमेनिंग वेक्टर बचेगा उसको हम नाम देते हैं x1। अब व्यूअर्स, सेकेंड इटरेशन में ये x1 जो हमने अभी जनरेट किया है वो काम आएगा, यानी सेकेंड इटरेशन में हम लिखते हैं x2 a multiplied to this capital X1, and we write y2 lambda 2 and x2. For third iteration we write x3 equal to square matrix A multiplied by this vector x2. We get another column vector y3. We extract the largest number, we call it lambda 3, and the remaining column vector will be called x3. So for up to nth iteration we have x n is equal to a multiplied by x n minus 2 n minus 1 equal to yn lambda n x n. So each इटरेशन में हमें जो ये लैम्डा मिल रहा है ये हमारा उस इटरेशन का आइगन वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट इटरेशन में जो हमें आइगन वैल्यू मिली है वो ये है। और जो x1 है वो हमारा उस इटरेशन का आइगन वेक्टर है। तो अगर हम nth इटरेशन पे जाते हैं तो लैम्डा n क्या होगा, आइगन वैल्यू, और xn क्या है हमारे पास, आइगन वेक्टर। अब इस चीज को व्यूअर्स एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, वो कैसे वर्क करेगा। लेट a इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स a -10 4 -6, and let we have capital X0 as 1 0. So now we apply power method to this matrix. So we have x1 is equal to a multiply to x0. So what do we get? 8 4 -10 -6
1 0 and we have 8 and 4. We extract the largest number. Which is the largest number? 8 is the largest number, so we extract it. 8. So we have 1 and half. So we write 8 1 0.5. Now this 8 is lambda 1 and this column vector is capital X1. अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाते हैं, तो लिखते हैं x2 is equal to a multiplied by capital X1. So we have 8 4 minus 10 minus 6 1 1.5 and we get one column vector, that is 3 1 equal to 3. हमने लार्जेस्ट नंबर एक्सट्रैक्ट किया and we get 1 and 1 over 3. So this 3 is the lambda 1, lambda 2 and this is capital X2. अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए चलते हैं. So we write x3 is equal to a multiplied by this x2. We write 8 4 minus 10 minus 6 1 1 over 3. We get 4.6667 and the second element is 2. We extract the largest element, that is 4.6667 1 and 0.4285. So this is our lambda 3 and this column vector is capital X3. Let us move for the next iteration. X4 is equal to a multiplied to X3. We have 8 4 minus 10 minus 6 1 0.4285 equal to 3.715. Second element is 1.429. We extract the largest number, 3.7151. Second element is 0.3846. This is our lambda 4. Lambda 4 and this column vector is capital X4. So for next iteration we write x5 a multiplied by x4. We have 8 4 minus 10 minus 6 1 0.3846 equal to 4.154 1.6923. Extract the largest number, that is 4.154 and the remaining column vector becomes 1. Second element is 1 point, sorry, this becomes 0.4074. So this way we can extend for the next iteration. तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे पावर मेथड अप्लाई कर सकते हैं. कंडीशन यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और पावर मेथड आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर प्रोवाइड करेगा. तो चलिए अब साइलैब में प्रोग्राम बनाते हैं.
तो चलिए अपना प्रोग्राम देखते हैं। पावर मेथड के लिए we apply power method to the matrix A to find its dominant eigenvalue। अब कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं। E is equal to 1, M is equal to 1। एक्यूरेसी के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं ACC 0.01 और I एक पैरामीटर लेते हैं नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए 0। अब हम लिखते हैं while E is greater than accuracy, I is equal to I plus 1, Y is equal to A multiplied to initial vector x0, E is equal to max। मैक्स कमांड हमें जो y कॉलम वेक्टर मिलेगा उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर y। अब हम लिखते हैं m इज इक्वल टू e और उससे पहले हम e पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। e इज इक्वल टू एप्स e माइनस m और अब x0 पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। x0 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय m और अब हम फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। m प्रिंट एफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज 2.5 f m डिस्प्ले x0 आइगन वेक्टर। अब इस कोड को रन किया, देखिए हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई है 4.00234 और आइगन वेक्टर है 1, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 0.4001172। अब व्यूअर्स इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो रिजल्ट हमें मिला है ये वेरीफाई किया जा सकता है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं v कॉमा eg इक्वल टू spec a। now eg is equal to diag eg display eg eigenvalues using spec command और यहां हम लिखते हैं v हमारा आइगन वेक्टर है यूजिंग spec कमांड। अब देखिए हमारे पास जो पावर मेथड से आइगन वैल्यू आई है वो है 4.00234 और जो आइगन वैल्यूज हमें स्पेक कमांड से मिली है वो है 4 एंड -2। अब हमें पता है पावर मेथड डोमिनेंट आइगन वैल्यू देता है, तो डोमिनेंट आइगन वैल्यू 4 और -2 में 4 है, तो हमें पावर मेथड से डोमिनेंट आइगन वैल्यू 4.00234 मिलती है। अब देखिए आइगन वेक्टर जो हमें पावर मेथड से मिला है वो ये है, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 0.4001172। अब जो आइगन वेक्टर हमें स्पेक कमांड से मिला है वो देखिए डोमिनेंट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हमें मिला है वो ये है। अब ये तो कुछ मिलता जुलता नहीं दिख रहा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए आइगन वेक्टर जो हमें स्पेक कमांड से मिलता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है और जो पावर मेथड से हमें मिला है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहूँ तो क्या करूंगा, मैं इसको कोड में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ x0 डिवाइडेड बाय नॉर्म x0 और अब मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो आइगन वेक्टर पावर मेथड से हमें मिल रहा है वो वही है जो कि स्पेक कमांड से मिल रहा है 0.9284392, 0.3714845 और वही चीज आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत वेरिएशन है वो एक्यूरेसी की वजह से है। अगर हम एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं तो आप देखिए जो स्पेक कमांड से हमें आइगन वेक्टर मिल रहा है वो है 0.9284767 और यहाँ पर 9284814। तो ये एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है। बाकी क्योंकि स्पेक कमांड से हमें नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर मिलते हैं, अब ये हमें पावर मेथड से जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं आइगन वेक्टर वो भी नॉर्मलाइज्ड है।
लेकिन उसको नॉर्मलाइज हमने कैसे किया है, उसको उसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम पावर मेथड अप्लाई कर सकते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे जिसकी सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं। पावर मेथड हमें डोमिनेंट आइगन वैल्यूज देगा और कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।